यांत्रिक चमत्कारानं आपल्याला मोहिनी घालणारा पांपल पूल. हा पूल प्रसिद्ध शिवधाम रामेश्वरला भारताच्या मुख्य भूभागाबरोबर जोडतो. इथं आज आपलं लक्ष वेधून घेण्याचं एक वेगळंच कारण आहे. समुद्रात मोत्याची शेती करून आपला उदरनिर्वाह करणाऱ्या काही ग्रामीण स्त्रियांच्या संस्था रामेश्वरच्या काठावरील या गावाकडे आपलं लक्ष खेचून घेतात. पांपन पुलापाशी मुंडल मुनै नावाच्या गावातील स्त्रियांच्या स्वसहाय्यक गटाची गोष्ट आहे. समुद्राच्या लाटा आणि तंत्रज्ञानाच्या कमी माहितीमुळे धडपडणाऱ्या या स्त्रिया एका वैज्ञानिक संघाची तांत्रिक मदत आणि स्वयंसेवी सामाजिक संस्थेच्या मदतीनं एक उदरनिर्वाहाचं साधन मिळवण्यात यशस्वी झाल्या आहेत. எங்களுக்கு சிஎம் பாரதி எங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்தாங்க. 5 நாள் பயிற்சி கொடுத்தாங்க. அது வந்து எங்களுக்கு இந்த பயிற்சி கொடுக்குறதுக்கு பண உதவி செஞ்சதெல்லாம் எம்எஸ் சுவாமிநாதன் நிறுவனம். அந்த பயிற்சி கற்றுக்கிட்டது நாங்கள் வந்து சிஎம் பாறையில் தான் கற்றுக்கிட்டோம். 5 நாள் பயிற்சி கொடுத்தாங்க. அதில் வந்து எங்களுக்கு இந்த எப்படி இடம் தேர்வு பண்ணுறது, அந்த பாம் எப்படி அமைக்கிறது, கூண்டு எப்படி பின்னுறது, சிப்பி சுத்தம் பண்ணுறது, இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே சிஎம் பாறையில் தான் எங்களுக்கு கற்றுக்கிட்டோம். इतिहासात कायम सौंदर्यप्रेमी लोकांची आवडती वस्तू म्हणजे मोती असा उल्लेख केलाय. पण या लहान गावातील स्त्रियांना या मोत्यांची चमकच जगण्याची गरजेच्या वस्तू मिळवून देते. எனக்கு 93 இந்த வருஷத்தோட வெள்ளப்போட்டிலேருந்து நான் ஒரு 10 வயசுக்குலாம் நம்ம தூத்துக்குடி தான். 18 வயசில் நான் சர்வீஸ் ஆகிட்டேன். வெறுங்கல்லையும் குளிச்சிருக்கோம், கண்ணாடி போட்டும் குளிப்போம். 7 ஸ்லாபம் 7 வருஷம் ஓடி இருக்கு. அந்த 7 ஸ்லாபத்துலேயும் நான் குளிச்சிருக்கேன். தூத்துக்குடியில் சுமார் 40 வருடங்களுக்கு முன்னாலே முத்து சலாபம் நடந்தது. மிகவும் சிறப்பாக துவங்கப்பட்ட முத்து சலாபத்தில் பாம்பையிலிருந்தும் சென்னையிலிருந்தும் கீழக்கரை காயல்பட்டினம் முதலிய இடங்களிலிருந்து பெரிய பணக்காரர்கள் வந்து அதை கலந்து கொண்டார்கள். அந்த முறையிலே அவர்கள் முத்து சலாபத்தில் ஆயிஸ்டர்ஸ், அதாவது சிப்பிகளை கடலில் இருந்து எடுத்து கொண்டு வருவார்கள். அந்த சமயத்தில் ஒரு மூடைக்கு சுமாராக 100 ரூபாயிலிருந்து 500 ரூபாய் வரை ஒரு மூடையினுடைய விலை போகும். அந்த மூடையெல்லாம் எடுத்து கொண்டு போய் அங்கே கடற்கரையிலே பெரிய தொட்டிகள் போடுவோம். அந்த தொட்டியிலே அந்த மூடைகளை ஒரு 4-5 நாடுகளுக்கு அதை அழுக வைப்பார்கள். அழுக வைத்ததுக்கு அப்புறம் அதை வந்து பிரித்து ஆயிஸ்டர்ஸிலிருந்து முத்து சிப்பியிலிருந்து அதை பிரித்து எடுத்து அவர்கள் அதையெல்லாம் முத்து திரும்ப கேதர் பண்ணுவார்கள். தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் எடுத்த முத்துகள் தான் மிகவும் பிரபலமானவை. அவைகள் மற்ற அந்நிய நாட்டுக்கு போகும் பொழுது இவர்களுக்கு விலை கூடுதலாக கிடைத்தது பாம்பே வியாபாரிகளுக்கு. மற்ற பஸ்ரா, ஆப்பிரிக்கா போன்ற இடங்களிலே எடுத்த முத்துக்கள் இதை விட லஸ்டர் குறைந்ததாகவே இருக்கின்றன என்பதை நாம் கண்கூடாக பார்த்துருக்கிறோம். அதுலேயும் பெரிய முத்துக்களை எடுக்கும் பொழுது பெரிய முத்துக்களெல்லாம் ஒரு முத்து வந்து அதுக்கு கேரட் என்று சொல்வார்கள். அதெல்லாம் ஒரு கேரட் முத்து கூட கிட்டத்தட்ட 10,000 ரூபாய்க்கு விற்றதாக நாங்கள் கேள்வி. भारतीय शेती संशोधन संस्थेच्या नियंत्रणाखाली केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्थेनं सागरी शिंपल्यापासून मोती तयार करण्याची पद्धत विकसित केली आहे. महागड्या मोत्यासाठी समुद्राच्या तळामध्ये झालेल्या अनियंत्रित काढणीमुळे जेव्हा शिंपल्याच्या संख्येत कमतरता येऊ लागली तेव्हा सरकारनं निर्बंध जारी केले. पण मोत्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी CMFRI म्हणजे सागरी मोती उत्पादन तंत्राचा विकास करून अडचणींवर उपाय शोधला गेला. प्रयोगशाळेत शिंपल्यांना विशेष आहार तसंच टेम्परेचर शॉक देऊन तयार होण्यासाठी उत्प्रेरित केलं जातं. अंड्यातून निघालेल्या डिंबकांना मोठं होऊ दिलं जातं, ज्यांना स्पॅट म्हणतात.
यांना परत समुद्रात तयार होण्यासाठी तयार केलेल्या शेतामध्ये सोडण्यात येतं. मोठं झाल्यानंतर शिंपल्यांना परत प्रयोगशाळेमध्ये आणण्यात येतं. मेन्थॉल रसायनाचा प्रयोग केल्यानंतर आपलं कपाट उघडतात. काही शिंपले उघडून मेंटल काढण्यात येतं. हे मेंटल 2 मिलीमीटर क्षेत्रफळाच्या तुकड्यामध्ये कापण्यात येतं. हे मेंटल न्यूक्लियसच्या बरोबर एका शिंपल्यात सोडण्यात येतं. या शेलकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये काही खास उपकरणांचा वापर केला जातो. यासाठी याला एका स्टँडमध्ये ठेवतात. यानंतर शिंपल्याला समुद्राच्या पाण्यामध्ये सोडण्यात येतं आणि 30 मिनिटात हे सामान्य अवस्था प्राप्त करतात आणि कामाला लागतात. यांचं आरोग्य लक्षात घेऊन यांना 2-3 दिवस नेटलॉनच्या पाट्यामध्ये ठेवून हवेशीर समुद्राच्या टाक्यामध्ये पाळतात. यानंतर यांना ओळखण्यासाठी प्लॅस्टिकच्या टोकनामध्ये नंबर देऊन पिंजऱ्यामध्ये घालून आणि आधीच तयार केलेल्या रॅकमध्ये यांना ठेवून सागरी शेतीमध्ये पाळण्यात येतं. चांगल्या प्रकारचे मोती मिळवण्यासाठी यांना 4-5 मीटरच्या खोलीवर पाळलं जातं. सहा 7 दिवसात मोत्याचं पीक तयार होतं. मोत्यांचा आकार, रूप, रंग, चमक आणि नॅकर कोटिंगच्या जाडीनुसार मोत्यांची प्रतवारी केली जाते. सगळ्यात मोठ्या सागरी मोत्याची किंमत 1,500 रुपये प्रति ग्रॅम मिळते. Mariculture was considered as one of the major research program under National Agriculture Technology Program in coastal agro ecosystem. The major thrust was given for upgrading the present pearl culture technology and also to develop larger sized pearl oysters and to develop tissue culture technology and also to develop a viable technology for production of pearl nucleus from the indigenous shells available in India. An advanced research has been taken up at CIMFRI to produce a pearl in the laboratory itself. In this technique, we are using a piece of mantle from the pearl oyster as well as abalone also. Both we have developed, and the mantle tissue is being cultured in the laboratory, and from the
tissue, all these cells are epithelial cells are coming out, and that will form the pale sac and organic matrix and nacreous layer. The formation of nacreous layer is a stepping stone for the production of laboratory bed. मोती पालन पद्धतीत संशोधन आणि बदल करून मेबे पर्ल किंवा इमेज पर्ल तयार करण्यात येतात. आपल्या आवडत्या नमुन्यात लहान प्रतिकृती बनवून त्यांना मोत्याचं चमकणारं आवरण घालून तयार केलेले मोती मेबे पर्ल आहेत. कॅल्शियम कार्बोनेट पावडर आणि डिंक मिसळून तयार केलेल्या गुळगुळीत मिश्रणात आवडत्या नमुन्याची प्रतिकृती चिटकवण्यात येते. यांना न्यूक्लियस स्थापित करण्यामुळे सुद्धा सोप्या पद्धतीनं शिंपल्यात ठेवण्यात येतं. जवळजवळ फक्त 2 महिन्यात या नमुन्यात लॅटर आवरण जडतं आणि हे साठवणुकीसाठी तयार होतात. यांना महाग आणि आकर्षक लॉकेटमध्ये रूपांतरित करण्यात येतं. मोठ्या आणि सुबक मोत्यांच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील मागणी लक्षात घेता शास्त्रज्ञांनी हे ओळखलंय की दक्षिण पूर्व सागरी किनाऱ्यावर मोठ्या संख्येनं शिंपले तयार केले जाऊ शकतात. CMFRIच्या शास्त्रज्ञांनी तांत्रिक क्षेत्रात उचललेलं एक महत्त्वाचं पाऊल म्हणजे रंगीत मोत्याचं उत्पादन. यासाठी शिंपल्याच्या आहारात आयर्न, कोबाल्ट, मॅग्नीज सारख्या धातूंना मिसळण्यात येतं. हे लक्षात आलं आहे की हे धातू मोत्यांना वेगवेगळे रंग देण्यासाठी मदत करतात. प्रत्येक मोत्याच्या हृदयात एक शेल बीड न्यूक्लियस आहे. याची निर्मिती कवचधारी प्राण्यांच्या कवचापासून करण्यात येते. NATPच्या योजनेनुसार कोच्चीच्या राष्ट्रीय मत्स्य संस्थेनं कॉम्प्युटर निर्मित डिझाईनच्या मदतीनं एक यांत्रिक पद्धत विकसित केली आहे, ज्यामुळे देशी कवड्यांना वेगवेगळ्या गुळगुळीत आकारात परावर्तित केलं जाऊ शकतं. हाँगकाँग, जपान, तैवान या देशांमधून आयात केल्या गेलेल्या दाण्यांवर आज भारत अवलंबून आहे. या स्वदेशी संशोधनानं विदेशावरती अवलंबून राहावं लागणार नाही. भारताचा दक्षिण पूर्व तट इतिहासात फारच सक्रिय आहे आणि यामुळे याचं पारिस्थितिक संतुलन नष्ट झालंय. कोळ्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी एक पर्याय म्हणून डॉक्टर MS स्वामीनाथन प्रतिष्ठाननं मन्नाड खाडीजवळील गावात कितीतरी योजना सुरू केल्या आहेत. We have selected one Mundal Munne village near that hamlet of Pamban Revenue village. This we have mobilized the people to form a community-based societies. In these societies, each family, one woman and one female member are joined. So they are joined together and form a society, and society is registered. They got a training from Central Marine Fisheries Research Institute. So they got an agreement to supply the nucleated ISTs. They buy the nucleated ISTs from CMFRI
and growing them in their farms and the seas. They have planned to establish 3 clusters in the coastlines of Gulf of Mannar. Each cluster has 3 villages. In each village, 10 family will be involved in agriculture program. So totally 90 family will be involved in agriculture program. ஆமாம், இதில் செய்கிற மாதிரி இன்னும் ஒரு 10 குடும்பம் இதில் முன்னேறி இதை கற்றுக்கிறதுன்னு சொல்லி சொன்னால் கொஞ்சம் அதுகளும் கொஞ்சம் வாழ்க்கையில் முன்னேறின மாதிரி இருக்கும்ல, ஒரு தொழிலையும் கற்றுக்கிறது மாதிரி இருக்கு.